How are you all? I hope you all are fit and fine, watching the videos and completing your work. So children, watch the videos regularly and complete your work. Children, once again, I welcome you all to class 1 computers. This is our computer book, IT Planet, My Bits and Bytes, computer series 1. So in the previous video, children, we were doing chapter 6, that is keyboard. So children, as you know, in the previous video we had studied the book exercise of this chapter, and in this chapter we had studied all about the keyboard. So by now you have understood what is keyboard and what are the uses of keyboard and what are the different keys which are present on the keyboard. So children, as we were studying about different parts of computer, the first main part of the computer is keyboard, about which we have already studied, and by now you all have understood everything about the keyboard. Now children, after completing this chapter, we are going to start chapter 7, that is mouse. So today children, we are going to start our next chapter, that is mouse. So children, as you know, mouse is another important part of a computer, using which we can do different types of tasks. So children, as we know, when we work on a computer, we use different parts of computer which are very important, and these are said to be essential parts of a computer, without which we cannot perform even a single task. तो बच्चों, कंप्यूटर के बारे में हमने पढ़ा, हमने कंप्यूटर कैसे स्विच ऑन करते हैं, कैसे स्विच ऑफ करते हैं पढ़ा हमने उसके यूजेस पढ़े, और वी ऑल्सो स्टडीड अबाउट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर. नाउ वी आर गोइंग टू रीड अबाउट दीज पार्ट्स इन डिटेल. In the previous chapter we have studied about keyboard. Now in this chapter we are going to read about the mouse, which is another important part of a computer. So let us start. So children, as you can see here on the screen, here is chapter 7. This is our chapter 7, and the name of the chapter is the mouse. And children, in this chapter we are going to cover the following topics. Let us see here. So the topic is the mouse. Topic to be covered is mouse. We will be reading about the mouse. We will be reading about features of a mouse, holding a mouse, using a mouse, and function of mouse pointer. So these are the topics about which we are going to read in this chapter. So children, let us start. So once again, here is our friend called Lappy. This is Lappy. As you know, in every chapter whatever we read is told by the लापी. सो हियर लापी हर चैप्टर में जो भी चीज़ें हम पढ़ते हैं वो लापी हमें बताता है, एंड इट गिव्स ऑल द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द टॉपिक अबाउट विच वी आर रीडिंग इन ईच चैप्टर. सो हर चैप्टर में जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है या जो भी हम पढ़ रहे हैं, ये ऑल दीज इंफॉर्मेशन वी गेट फ्रॉम द लापी इटसेल्फ. सो वंस अगेन चिल्ड्रन, लापी सेज, डियर किड्स, नाउ you are familiar with the keyboard. As I told you in the previous chapter we have studied about keyboard. So हम keyboard से familiar हो चुके हैं, यानी we are very much familiar with the keyboard or with the each and every button or the keys present on the keyboard. तो जो भी button और keys keyboard में present है उन सब से हम एकदम familiar हो चुके हैं, and now we can easily use keyboard for doing any task in the computer. And now after this we are going to read about another important part of the computer, that is the mouse. Let us know about the mouse, which is another important part of a computer. अभी मैंने आपको बोला कि हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था व्हाट इज़ कंप्यूटर से. हमने कंप्यूटर के बारे में पढ़ा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन्स के बारे में पढ़ा, एंड वी ऑल्सो नो दैट कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन. कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, और इलेक्ट्रॉनिक का मतलब भी हमने समझा कि इलेक्ट्रॉनिक मीन्स समथिंग विच रन बाय द इलेक्ट्रिसिटी. सो इसमें हमने बहुत सारे मशीन्स के बारे में पढ़ा, एंड नाउ बाय नाउ वी हैव ऑल्सो अंडरस्टूड दैट द कंप्यूटर इज़ very much different from these machines. Of course it is a machine, it helps us in doing a task, but not only a task, but it helps us in doing lot of
टास्क या मिनी टास्क या डिफरेंट टास्क, तो वो हमें बहुत सारे काम करने में हेल्प करता है, इसलिए इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द ऑर्डिनरी मशीन। तो मशीन का मतलब क्या होता है, कोई भी मशीन जो हमारे काम को आसान बनाती है या हमारे काम को करती है उसे हम मशीन कहते हैं या डिवाइस कहते हैं। तो कंप्यूटर भी एक डिवाइस है, लेकिन कंप्यूटर में बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स होते हैं जो मिल करके सारे काम करते हैं। तो व्हेन वी वर स्टडिंग अबाउट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट दीज पार्ट्स, बट हियर in this chapter we are going to read about the mouse in detail। पिछले चैप्टर में हमने कीबोर्ड के बारे में डिटेल में पढ़ा था, हमने सारे कीज़ के बारे में पढ़ा था, उसके यूजेस के बारे में पढ़ा था। नाउ वी आर गोइंग टू रीड about another part of the computer, another important part of the computer in this chapter, that is the mouse। So here you can see, dear kids, the lappy says, dear kids, now you are familiar with the keyboard। familiar का मतलब क्या होता है, फेमिलियर का मतलब होता है कोई भी चीज़ जिससे हम परिचित हों, अच्छे से परिचित होते हैं, जिसे हम बहुत अच्छे से जानते हैं, उसके यूजेस जानते हैं या फिर उसके बारे में जानते हैं, तो वहाँ पे उसे फेमिलियर होना बोलते हैं। तो यहाँ पे भी हम कीबोर्ड से फेमिलियर हो चुके हैं। नाउ वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द माउस। सो लेट अस नो अबाउट द माउस, व्हाट इज़ एन विच इज़ एन अदर इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर, जो कि एक दूसरा इम्पॉर्टेंट पार्ट कंप्यूटर का है। तो एज वी हैव स्टडीड इन द सेकेंड और थर्ड चैप्टर दैट कंप्यूटर, देर आर 4 मेन पार्ट्स विच आर इम्पॉर्टेंट when we work on a computer, and all these 4 part join together and form computer system। ये सारे parts एक साथ मिल करके computer system बनाते हैं, और कंप्यूटर जो है it works in a system। So same as our body children, हमारे बॉडी की तरह एक पूरा बॉडी तो होता है, लेकिन उसके पार्ट्स अलग अलग होते हैं, और सारे पार्ट्स मिल करके इंटरनल पार्ट्स, एक्सटर्नल पार्ट्स, यानी जो बाहर हमारे बॉडी के पार्ट्स होते हैं या अंदर होते हैं, सब मिल करके एक पूरी बॉडी बनाती है और बॉडी की फंक्शनिंग होती है, और इस तरह से एक बॉडी पूरा काम कर पाता है या फंक्शन कर पाता है। सिमिलरली कंप्यूटर में भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं, और इन सभी पार्टें, वैसे तो कंप्यूटर में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, कुछ को हम अपने काम के हिसाब से ऐड करते हैं या रिमूव करते हैं, और हर वक्त हर पार्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन देयर आर 4 मेन पार्ट्स। 4 ऐसे पार्ट हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड दे आर ऑलवेज नीडेड व्हेन वी वर्क ऑन द कंप्यूटर। जब हम कंप्यूटर पे काम करते हैं तो ये 4 पार्ट्स हमेशा इन 4 पार्ट्स की हमेशा हमें ज़रूरत पड़ती है। दैट इज़ कीबोर्ड, एक तो कीबोर्ड हो गया जिसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सेकेंड थिंग इज़ मॉनिटर, थर्ड इज़ माउस, एंड द फोर्थ वन इज़ चिल्ड्रन CPU। ये 4 जो पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो वी विल बी रीडिंग अबाउट दीज 4 पार्ट्स वन बाय वन। इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव अंडरस्टूड अबाउट कीबोर्ड, नाउ वी विल रीड अबाउट माउस। सो माउस चिल्ड्रन, MOUSE, माउस। A mouse is a pointing device। What do you mean by pointing device children? Pointing device का मतलब क्या होता है? वो डिवाइस जिससे हम किसी चीज़ को पॉइंट करते हैं। तो सबसे पहले MOUSE, माउस। MOUSE, माउस इज़ अ पॉइंटिंग डिवाइस। पॉइंटिंग डिवाइस का मतलब होता है वो डिवाइस जिससे हम किसी चीज़ को पॉइंट करते हैं या किसी चीज़ को शो करते हैं। तो कंप्यूटर के स्क्रीन पे यानी कि मॉनिटर पे अगर हमें किसी चीज़ को दिखाना है तो हम वहाँ पे माउस पॉइंटर को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे माउस इज़ अ पॉइंटिंग डिवाइस, तो यहाँ पे माउस को यूज़ करके उस चीज़ को दिखाते हैं, तो इसीलिए हम इसको पॉइंटिंग डिवाइस कहते हैं। विच इज़ यूज टू मूव, उसके अलावा हम इसको यूज़ करते हैं किसी भी आइटम को, कोई भी आइटम अगर स्क्रीन पे डिस्प्ले किया हुआ है या दिखाया जा रहा है तो उसको हमें दिखाने के लिए या शो करने के लिए, मूव करने के लिए, पॉइंट करने के लिए, सेलेक्ट करने के लिए हम माउस का यूज़ करते हैं। तो मेन पर्पस ऑफ द माउस इज़ टू पॉइंट समथिंग डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन। अगर कोई भी चीज़ स्क्रीन पे डिस्प्ले है या दिख रही है या हमारे सामने स्क्रीन पे है, उसको अगर हमें दिखाना है, उसे हमें मूव करना है यानी एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है, पॉइंट करना है, सेलेक्ट करना है, तो हम वहाँ पे माउस का यूज़ करते हैं। तो द मेन पर्पस ऑफ द माउस इज़ टू पॉइंट समथिंग। उसके अलावा मूव और सेलेक्ट करने के लिए भी हम माउस का यूज़ करते हैं। देयर इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट यूज़ ऑफ अ माउस चिल्ड्रन, एज वी नो व्हेन वी ड्रॉ एंड पेंट ऑन कंप्यूटर वी यूज़ माउस। अगर हमें ड्राइंग करनी हो या पेंट करना हो तो हम ड्राइंग और पेंटिंग सिर्फ माउस के यूज़ से ही कर सकते हैं। कीबोर्ड से हम ड्राइंग और कलरिंग नहीं कर सकते हैं। तो हियर
mouse is also used for drawing and coloring in the computer. अगर आप कंप्यूटर में ड्राइंग कर रहे हो या फिर कलरिंग कर रहे हो तो वहाँ पे भी हम माउस का यूज़ करते हैं. अब नाउ चिल्ड्रन, माउस, हम इसे माउस क्यों कहते हैं? एज यू कैन सी हियर चिल्ड्रन, हियर इज़ अ पिक्चर ऑफ अ माउस. ये माउस का पिक्चर है, इसे हम कंप्यूटर माउस कहते हैं. और दिस वर्ड इज़ वेरी मच फेमिलियर टू यू. आप सभी के लिए ये वर्ड बहुत ही फेमिलियर होगा. क्यों फेमिलियर होगा? क्योंकि आप रोज़ माउस का यूज़ करते हैं? नो. इसलिए चिल्ड्रन, क्योंकि देर इज़ अ माउस इन योर हाउस ऑल्सो. आपके घर में भी एक माउस होता है जो एकदम इसी माउस की तरह दिखाई देता है. और इस माउस की तरह दिखने की वजह से ही हमने इस कंप्यूटर के माउस का नाम माउस रखा हुआ है. MOUSE, माउस, जिसे हम हिंदी में चूहा कहते हैं. तो हम सभी के घर में चूहा होता है और चूहा हमें अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी ये एक तरह का पेस्ट होता है जो अनवांटेडली हमारे घर में हमारे साथ रहता है. हमारे घर में बहुत नुकसान करता है, कपड़े काट देता है या फिर गंदगी फैलाता है, बीमारियां फैलाता है, लेकिन फिर भी हम कुछ नहीं कर सकते. ना चाहते हुए भी हमारे घर में हमारे साथ रहता है. लेकिन ये जो माउस है वो वाले माउस से अलग है, इसलिए क्योंकि ये माउस हमारे लिए बहुत यूज़फुल होता है और ये हमारे कंप्यूटर का माउस होता है, जिसको यूज़ करके हम कंप्यूटर में गेम्स खेल सकते हैं, कंप्यूटर में ड्राइंग कर सकते हैं, कलरिंग कर सकते हैं. एज आई टोल्ड यू, कोई भी चीज़ अगर हमारे स्क्रीन पे दिखाई दे रही हो उसको दिखा सकते हैं, शो कर सकते हैं, पॉइंट कर सकते हैं, उसे एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं और उसे सेलेक्ट कर सकते हैं. तो दीज आर द मेन फंक्शंस ऑफ अ माउस. ये सारे काम माउस के होते हैं. और मैंने जैसा कि मैंने बोला, इट लुक्स लाइक अ माउस. इसका शेप कुछ चूहे की तरह होता है या माउस की तरह होता है, इसलिए हम इसको माउस कहते हैं. तो चिल्ड्रन, हियर इफ़ यू कैन सी हियर, दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ अ माउस. दिस पिक्चर इज़ ऑफ अ माउस. ये एक माउस का पिक्चर है जो एकदम हमारे घर में पाए जाने वाले माउस की तरह ही दिखाई देता है, इसलिए इसका नाम माउस पड़ा है. इसके अलावा चिल्ड्रन, इफ़ यू कैन सी हियर, ये जो माउस होता है इसमें देर आर 2 बटन्स. समटाइम्स देर आर 2 बटन्स एंड समटाइम्स देर आर 3 बटन. लेकिन कॉमनली जिस माउस को हम यूज़ करते हैं उसमें 2 बटन्स होते हैं. इफ़ यू कैन सी हियर चिल्ड्रन, वन इज़ हियर एंड द अदर वन इज़ हियर. अब ये हमारे हैंड के पोजीशन के हिसाब से, जो राइट हैंड साइड में होता है उसको हम राइट माउस बटन कहते हैं और जो लेफ़्ट हैंड साइड में होता है उसको हम लेफ़्ट माउस बटन कहते हैं. और इन दोनों बटन्स के बीच में एक छोटा सा पहिया होता है. अगर आप लोगों के पास खिलौना होगा, कार होगी, टॉय कार होगी या कोई भी इस तरह का व्हीकल होगा, उसमें छोटे छोटे से जैसे पहिए होते हैं, वैसे ही इस माउस में भी इन दोनों लेफ़्ट और राइट बटन के बीच में एक छोटा सा पहिए जैसा शेप होता है, जिसको हम व्हील कहते हैं या स्क्रॉल बटन भी कहते हैं. तो एक साइड में लेफ़्ट बटन होता है, लेफ़्ट साइड में लेफ़्ट बटन होता है. लेफ़्ट बटन इज़ टुवर्ड्स योर लेफ़्ट हैंड एंड राइट बटन इज़ टुवर्ड्स योर राइट हैंड. अब ये दोनों जो बटन होते हैं 2 तरफ होते हैं और इनके बीच में एक छोटा सा व्हील होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, स्क्रॉल बटन कहते हैं. अब ये जो आपका राइट और लेफ़्ट बटन होता है उसको क्लिक करके हम माउस को यूज़ करते हैं या ऑपरेट करते हैं. उसके अलावा अगर जो आपको स्क्रीन को स्क्रॉल करना हो या आपके पास लंबी सी लिस्ट हो उसको ऊपर नीचे स्क्रॉल करना है तो वी यूज़ दिस व्हील. इसके अलावा जो माउस होता है समटाइम्स इट इज़ कॉर्डलेस और समटाइम्स कॉर्ड वाला भी होता है, मतलब इसमें वायर वाला भी होता है. यू कैन सी हियर वायर से कनेक्टेड भी हो सकता है. ये वायर होता है इसे CPU से कनेक्ट करने के लिए. तो समटाइम्स देर इज़ वायर एंड समटाइम इट इज़ विदाउट वायर ऑल्सो. तो दोनों तरह के माउस होते हैं. सो दिस इज़ माउस. एंड माउस, इफ़ यू स्पेल माउस, द स्पेलिंग ऑफ माउस इज़ MOUSE, माउस. माउस इज़ अ पॉइंटिंग डिवाइस, वो डिवाइस जो किसी चीज़ को दिखाता है, पॉइंट करता है, विच इज़ यूज्ड टू मूव पॉइंटर और सेलेक्ट आइटम ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन. तो ये इस माउस को यूज़ करके हम मूव कर सकते हैं, पॉइंट कर सकते हैं, किसी भी आइटम को सेलेक्ट कर सकते हैं. अदर देन दीज चिल्ड्रन, वी ऑल्सो यूज़ दिस माउस टू ड्रॉ एंड पेंट. So children, today we discussed about the mouse. This was a small introduction about mouse. अभी आपने माउस को देखा होगा. अब जो चीज़ें आपको नहीं पता थी वो भी आई होप आपको समझ में आया होगा. In the next video, we will discuss few more things about mouse. We will study about the mouse in detail. We will be reading about the features of mouse,
and we will be reading about the name of the buttons present on the mouse as well as the functioning of these buttons. So children, this much for today. We will meet once again in the next video. Till then, go through the chapter, learn the spellings, and we will meet once again in the next video. And till then, thank you and have a nice day ahead.